studying about the second part of time of surgery. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over the thoroughly inspected him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with the surplus fat. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlock rush followed by the sounds of high and spiriting. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Now, now अब इसकी समरी सुनो हिंदी। थोड़े से पैसेज बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़ने पर समझने पर अच्छी तरह से कर सकते हो। अब आगे क्या होता है कि अस्पताल में घर के कुत्तों ने दौड़ कर मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को देखा और जब उसे कारपेट पर रखा गया वो एकदम शांत लेट गया था। दूसरे कुत्ते भागते हुए उसे सूंघते हुए निर्णय लिया कि भाई वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इग्नोर किया। नैरेटर कह रहे हैं कि उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक के पास लगा दिया गया जहां दूसरे कुत्ते सोते थे। 2 दिनों तक नैरेटर उस पर नज़र रखे सिवाय खूब पानी खाने को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे दिन क्या होता है, चारों तरफ उसने कुछ रुचि दिखाई, इंटरेस्ट लिया और थर्ड डे हल्की आवाज़ में उसने आंगन में इधर उधर कुत्तों को सुनने का कोशिश करने लगा। नरेटर कह रहे हैं जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्ते तथा उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया। उसे लुढ़काने तथा पूर्ण परीक्षण करने में जांच पड़ताल कर रहा था। कुत्ता चेक कर रहा था ये कैसा है ट्रिकी। वहाँ से बाग में चला गया। ट्रिकी उसके पीछे चल पड़ा। बाग में भी धीरे धीरे लुढ़कता हुआ अपने मोटापे के साथ वह भी बाग में पहुँचा। उस दिन के बाद मैं भोजन के समय उपस्थित था। नैरेटर कह रहे हैं कि ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा। वहाँ पहले की तरह ही भाग दौड़ की गति से खाना खाने की आवाज़ आ रही थी। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पिछड़ गया तो हो सकता है बहुत थोड़ा बचा हुआ हिस्सा के लिए उसको मुकाबला करना पड़ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling this way towards it. From them on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind of all day, but he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, the squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of meals times and hunting rats off in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. All the while,
Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dozed the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat from warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescent seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring out fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each of breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial cuisine with 2 glasses of wine before and several during the meal. जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमा तथा 1 या 2 कटोरों को लापरवाही से चाटा। अगले दिन एक अतिरिक्त बर्तन उसका कटोरा के लिए रखा गया और उस बर्तन की तरफ धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते हुए देखकर खुश हुआ। उस दिन से उसमें थोड़ी सुधार होने लगी। उसे अब किसी तरह का मेडिसिनल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, परंतु पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। उसके मित्रवत झगड़ों में शामिल होता हुआ रहता था। वह उस समूह का एक सदस्य बन चुका था। एक असामान्य रेशमी छोटा प्राणी जब झगड़ेदार कुत्तों के समूह में भोजन के दौरान अपने हिस्से के लिए टाइगर के जैसा लड़ता हुआ रात में हैन के बाड़ों में यानी उसके ग्रुप में चूहों का शिकार करता रहता था। अब श्रीमती पम्फ्रे काफ़ी चिंता के साथ इंतज़ार कर रही थी। उन्हें लगता था कि जल्दी जल्दी समाचार मिले। दिन भर दर्जनों फ़ोन कर देती थी। मैं उन प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करता। उनके प्रश्न भी वैसे होते थे कि गद्दा बदला, कुशन बदला, कपड़े बदले, कौन सा कपड़ा पहना, ऐसी बातें करते थे। अब उनको जैसे ही मैंने बताया कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो ठीक होना शब्द ने मानो श्रीमती पम्फ्रे को कुछ प्रभावित किया था। अब एक बार में दर्जनों बार सोचते सोचते उनकी सोच ऐसी बन गई कि चलो अब तो 2 दर्जन ताज़े अंडे ट्रिकी के मजबूती के लिए लाना शुरू कर दिए। कुछ समय तक मैंने तथा मेरे पार्टनर ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, परंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो घर के हालात की अच्छी संभावनाएं स्पष्ट होने लगी। पोजीशन अच्छा नहीं था, इसलिए ट्रिकी के ब्लड को अच्छा बनाने के लिए था, परंतु दोपहर का भोजन हमारे लिए एक ओकेज़न का अवसर बनता चला गया, जैसे कि वाइन की 2 ग्लास भोजन से पहले और दिन भर भोजन के दौरान, जो कि अच्छी बात नहीं थी। ओके, नेक्स्ट पैरा हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The coffee opened the door, and I would just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" नाउ अब हम लोग इसकी हिंदी में समझेंगे। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. नेक्स्ट इसकी हिंदी सुनिए।
और तब हम मुश्किल से विश्वास कर पाए जब उसके संपूर्ण शरीर अच्छी तरह से उनके लिए ब्रांडी आने लगी, वाइन आने लगी। कुछ रात तक उसे अच्छी ब्रांडी के तौर पर दौड़ चलता रहा, जिसे सूंघा गया, आदर के साथ लिया गया। वे दिन भी बड़े संतुष्टि के थी जब अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर दिन भर ऐसा दौड़ चलता था कि सुबह से रात तक वाइन ही चल रहा हो, ख़त्म नहीं होता था। ट्रिकी को स्थायी मेहमान बनाकर रखना एक अच्छी बात नहीं थी, परंतु नरेटर कह रहे हैं कि श्रीमती पॉम्फ्रे बड़ी दुखी थी और फोर्टनाइट के बाद 15 डेज बाद उनको बताने के लिए मजबूर हो गया कि वह छोटा कुत्ता ठीक हो चुका था और उसे ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही मिनट में लगभग 30 फीट की लंबी चमकती हुई काले रंग की गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। चालक ने दरवाज़ा खोला। श्रीमती पॉम्फ्रे की आकृति का सिर्फ अनुमान लगाया गया क्योंकि वो कार के अंदर ही बैठी हुई अपने आप में खोई थी। उसके साथ उनके आगे हाथ बंधे हुए थे। उसकी कांपते ओठों से आवाज़ आई, आह श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच बताइए, क्या वह सचमुच पहले से अच्छा है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल अच्छा है, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे आपके पास लेकर ही आ जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail wagging, the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from Annie's arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled oof and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the windows. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Now, अब इसकी हिंदी सुने। मैं मकान से होता हुआ बगीचे में गया। बहुत सारे डॉग्स का झुंड घास के मैदान में बहुत तेज़ गति से गोल गोल घूम रहे थे और उसके बीच कान को फटकारता हुआ, पूँछ को हिलाता हुआ वही छोटा कदबला ट्रिकी था। 2 सप्ताह में वो लचीला और अच्छा मोटा खासा बन चुका था। शरीर को इतना फैलाता हुआ जैसे ज़मीन में रगड़ा रहा था। खाने लगे वो समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता भी कर लेता था। मैं उसे वापस गलियारे में होता हुआ घर के सामने ले आया। चालक अब कार के खुले दरवाजे को पकड़े हुए था। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी गोद से छलांग मारता हुआ श्रीमती पम्फ्रे गोद में जा गिरा। वो चौंक गई, उफ, और तब उससे स्वयं को बचाना पड़ा क्योंकि वह उस पर, ट्रिकी मालकिन पर टूट पड़ा था, उसके चेहरे को चाटता हुआ और भौंकता हुआ मानो कुछ पूछ रहा हो। इस उत्तेजना के दौरान मैंने चालक की मदद की। उसके बिस्तर और जितने खिलौने गद्दे जो यूज़ नहीं हुआ था, सारी चीज़ें उसकी कार में रख दिया। श्रीमती पम्फ्रे खिड़की के बाहर जो गई और हाथ हिलाते हुए, आंखों में आंसू के साथ, होठ कांपते हुए उसने कहा, मिस्टर हैरियट, और चिल्लाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने इस अस्पताल, एक तरह से ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी अस्पताल की जीत हुई है। ओके, अब लेसन फिनिश। आपके लिए कुछ होमवर्क मिलेंगे, जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करना बनाने को, मैं उसका जवाब बाद में लिख कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी's मिस्ट्रेस, यानी क्या नरेटर
ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह डॉग के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता था। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ द टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, नरेटर ट्रिकी को एक परमानेंट अतिथि बनाए रखने की लालच क्यों करता था। और लास्ट क्वेश्चन है वाई डज मिसेस पॉम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अस्पताल के बारे में श्रीमती पॉम्फे कुत्ते के ठीक होने को एक जीत मानती थी, ऐसा क्यों। ओके, थैंक यू।